you're never sure basically. So I kind of, again, I was very upset after my GS2, almost into tears and everything. Okay. इस बार के attempt हाँ, में? इस बार के अटेम्प्ट में. Okay. But and optional also, मेरा Okay. optional बिगड़ गया था GS1 अब इस बार? पेपर 1. Okay. तो कंफ्यूजन था, बट कहीं ना कहीं ये पता था कि इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा, Okay. पर अंडर 100 रैंक आ पाएगी कि नहीं, Surety इसके नहीं लिए थी. श्योरिटी नहीं थी. बट वो शायद ही कभी होती है. दिस इज द नेचर ऑफ एग्जाम. It's a surprise. You're never sure. It's a surprise. Life is an endless journey, which is filled with a lot of struggles and challenges. And when the challenge is as big as the UPSC Civil Service exam, there is a lot to put in. Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Fiona. और आज हम एक ऐसे टॉपर से मिलने वाले हैं who has had an amazing journey right from an All India rank 241 to an All India rank 40. Everyone, let's welcome Garima Agrawal. Hi Garima, welcome to the show. Thank you so much. So first of all, Garima, big congratulations from the entire Unacademy team कि you know आपके इतने अच्छे results से I know कि आपने already last year भी qualify कर लिया था. I think that was when I had actually started talking to you. Right. तो last year से अभी का सफर, like from 241 to a 40, how did it happen? I don't know. It's difficult to summarize how did it happen. Mm-hmm. But if I have to talk about the strategy part of it, how to improve the rank. Uh-huh. So I think in terms of number of hours of studies that I put in this time was almost half that of the first attempt. जी. So Because what इस बार आप already service पे थे, I right? was already into services, I was under training. But I think what really worked for me was to objectively analyze the mistakes that I had committed in my previous attempt and analyze my own mark sheet. जी. So I think working on those little points and working on both my strengths and weaknesses really helped me in getting this rank this year. Great. Yes. तो अभी फिलहाल इस साल की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी तो ऑलरेडी आप ट्रेनिंग एकेडमी में जा चुके थे, like while you were preparing for this year's attempt? Yes. So I gave 2 attempts back to back. Okay. So I got my result 27 April 2018. तो आपने ब्रेक नहीं लिया? ब्रेक नहीं लिया, और 1 महीने बाद ही प्रीलिम्स थी. I जी. kind of decided just 20 days prior to prelims की एग्जाम देना है. जी. तो इस बार के अटेम्प्ट के लिए बहुत कम टाइम था पढ़ाई का. जी. एंड राइट आफ्टर मेंस आई जॉइंड माय ट्रेनिंग एट NPA. Okay. एंड एज यू नो, बहुत लंबी IPS होती की है, ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली रिगरस, जी. एग्जॉस्टिंग. तो लिटरली पढ़ाई के लिए, इंटरव्यू की पढ़ाई के लिए समय चुराना पड़ता था. दिन में अगर आधा घंटा भी मिल जाए तो हम बहुत खुश होते थे कि कितने चलो. घंटों की ट्रेनिंग होती थी? NPA में ट्रेनिंग लगभग 14 आवर्स होती है. Okay. The day starts around 4:35, 5 o'clock in the morning. It kind of ends at 7 and sometimes 9 when you have extra classes. Okay. Includes both outdoor and indoor. Okay. So तो उन 14 घंटों की ट्रेनिंग, you know, the ग्रिल वाली ट्रेनिंग के बाद फिर भी you know you need to have some time for sleep also. तो Right, कितना right. टाइम फिर भी आप निकाल लेते थे for you know your studies? I could not really prepare much in initial 2 months of training because it was already too much for me to handle. Okay. But I think इंटरव्यू के 1 महीने पहले से ही मैंने लगभग 1 से 2 घंटा तैयारी देना शुरू किया. वीकेंड्स में समय निकाल कर पढ़ती थी. डेली जी. तो कई बार 1 घंटा भी नहीं मिल पाता था. Okay. देन आई ऑल्सो मेट एन इंजरी एंड फ्रैक्चर इन बिटवीन. तो वो भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया और Okay. बहुत टाइम नहीं दे पाई. Okay. बट फॉर्चुनेटली इंटरव्यू हैज ऑलवेज बीन माई स्ट्रॉन्ग फोर्टे और एरिया. अच्छा. तो दैट्स व्हाई आई वाज कंफर्टेबल, और कम तैयारी के साथ भी हाँ. मैं जो भी बेस्ट हो सकता था वो देकर आई. तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी आपको कि अगर कोई लास्ट मिनट टिप्स हो जो आप हमारे यू नो सारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए जो इस 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स के, तो अभी ये लास्ट कुछ दिन में इन्हें क्या करना चाहिए? शायद अगर आप ये भी बता सको कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स जो डेफिनेटली उनको रिवाइज कर लेने चाहिए ये कुछ लास्ट के कुछ दिनों के लिए. Number 1, time management, both during preparation and during attempting the paper. तो आपका प्रिपरेशन का फेज लगभग खत्म हो गया है. जी. बचे हुए 15 दिनों में जितना रिवीजन हो सके वो करिए. कुछ भी नया टॉपिक मत उठाइए, और जो कुछ किया है उसको प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर सब कुछ रिवाइज करना है. CSAT के 1 या 2 पेपर देख लो, बिकॉज आई नेवर प्रिपेयर्ड फॉर CSAT. तो मैं बस 1 आध टेस्ट पेपर जरूर दे लेती थी लास्ट 15 डेज में. जी. और टॉपिक्स अगर जो आखिरी में देखने हैं तो एक बार पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स ब्रश अप कर लेना चाहिए, क्योंकि कितनी ही बार हम लक्ष्मीकांत रिवाइज कर ले, इट्स नेवर इनफ. जी.
तो आखिरी में ब्रश अप कर ले सो दैट कोई सिली मिस्टेक ना हो. इन्वायरमेंट, शंकर IAS इज वन बुक. अगेन जितना पढ़ लो इट्स नेवर इनफ. सो वो एक बार देख लें, ऑल नेशनल पार्क्स, एवरीथिंग. फिर देर आर दोज लिटिल बुकलेट्स ऑन रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, स्कीम्स. ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा प्रीलिम्स के 1 महीने पहले ही देखी जाती है, नो मैटर कितनी ही समय से तैयारी चल रही है. तो उनको एक बार ऊपर से देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, ताकि अगर बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो वहां हो जाए. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आई वुड सजेस्ट कि देख लें. बट सारी तैयारी एक तरफ और प्रीलिम्स का वो एक दिन एक तरफ. सो उस दिन बहुत कॉन्फिडेंट होकर जाना है. सुबह अपने आप से कहना है कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, सब कुछ अच्छा होने वाला है. पेपर कितना ही टफ आए, गिव इट अ स्माइल कि चलो जैसा भी है मैं तो अच्छा ही करूंगी. एंड प्लीज मैनेज योर टाइम वेल. मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि यूपीएससी की एग्जाम में टाइम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. एक चीज और जो मैं पूछना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कि आप बार बार बोलते हो द इम्पोर्टेंस एंड एम्फेसिस ऑफ टाइम मैनेजमेंट. अगेन दिस इज ऑल्सो अ स्किल जो लोग डेवलप करते हैं. राइट, टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से किसी को अच्छी से नहीं आती है. तो आप क्या कहोगे हमारे जो एस्पिरेंट्स है, चाहे जो इस अटेम्प्ट के लिए है या शायद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहोगे लाइक इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट? हाउ कैन दे स्टार्ट बिल्डिंग दिस स्किल? क्या करना चाहिए उन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, देखिए 2 बातें होती हैं. एक एस्पेक्ट है प्रिपरेशन और दूसरा होता है अटेम्प्टिंग द एग्जाम. दोनों का 50% वेटेज है. तो प्रिपरेशन के टाइम पर टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, समय कम है. इसके लिए मैं ये करती थी, जो मैं रिपीटेडली कह रही हूँ, कि मैं टाइम टेबल बनाती थी अपनी पढ़ाई का और बहुत स्ट्रिक्टली स्टिक करती थी. तो हर महीने की पहली तारीख को मैं एक टाइम टेबल बनाती थी कि इस महीने मुझे हिस्ट्री करना है, पहले हफ्ते में एंशिएंट पढ़ूंगी, नेक्स्ट 2 वीक्स मॉडर्न एंड सो ऑन, किस सोर्स से. और हर दिन मॉर्निंग को भी, हर दिन रात को भी अगले दिन का टाइम टेबल बनाती थी कि कल से 12 घंटे पढ़ना है तो सुबह के 4 घंटे ये, देन ये, देन ये. अब दूसरा हिस्सा आता है अटेम्प्टिंग द पेपर, जिसको मैं इसलिए बार बार फोकस दे रही हूँ क्योंकि पिछले साल मेरी रैंक के पीछे कारण ही पुअर टाइम मैनेजमेंट था. मेंस में मैंने लगभग 120 से 160 मार्क्स के क्वेश्चंस छोड़ दिए थे बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई कुड नॉट कंप्लीट अ सिंगल पेपर. एंड समहाउ दैट इज द रीजन कि मेरे जीएस में मार्क्स कम आए. और इस साल अगर मैंने कोई भी चीज में इम्प्रूव किया है तो दैट जस्ट टाइम मैनेजमेंट. आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल माय पेपर्स. तो गरिमा जी, अब ये बताइए, आपने हमें थोड़ा सा सीसैट के बारे में भी बताया. अब क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है इसलिए आई जस्ट वांट टू टच ऑन दैट. आपकी ऑब्वियसली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी, तो शायद सीसैट फिर भी आपके लिए इट वाज पॉसिबल कि 1 महीने पहले आपने उसके लिए 1 महीने पहले ही आपने किया था उसके लिए प्रिपरेशन? नहीं, सीसैट के लिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया था एग्जाम के पहले, प्रीवियस ईयर यूपीएससी का ही. एंड व्हेन आई कुड सी कि कंफर्टेबली 120-130 के ऊपर स्कोर आ रहा है, तो फिर मैंने बहुत प्रिपरेशन नहीं की. बट दोज जिनको नहीं समझ आ रहा है कैसे अप्रोच करना है, उनको भी यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले 1 या 2 पेपर दे के देखिए, यूपीएससी के ही पिछले साल के. स्कोर एनालाइज करिए. अगर से 80 के ऊपर आ रहा है स्कोर बिना पढ़े, तो डो नॉट पुट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू इट, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट. और अगर नहीं आ रहा है तो 1-1.5 महीना थोड़े से प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस. तो प्रैक्टिस कर करके डेफिनेटली यू विल बी इन अ सेफ जोन. तो अब स्ट्रेट आते हैं हम प्रीलिम्स के लिए ही. तो प्रीलिम्स में अगर आप अब हमारे सारे एस्पिरेंट्स को बता सको कि प्रिपरेशन आपने सब्जेक्ट वाइज कैसे की थी प्रीलिम्स के लिए. तो सबसे पहले हिस्ट्री पे चलते हैं. हिस्ट्री के भी 4 हिस्से हैं, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न इंडिया एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो. सो सारे टॉपर्स यही कहते हैं, इट्स अ फैक्ट, कि एनसीईआरटीज आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स. सो जहाँ तक बात एंशिएंट हिस्ट्री की है, मैंने एक ही बुक पढ़ी थी, आर.एस. शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी. और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया. इट गिव्स अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड फोटोज, तो विजुअल मेमोरी एक विजुअल मेमोरी हो पाती है. मिडीवल पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था. तमिलनाडु की एक बुक आती है 11th की, उसके कुछ एक चैप्टर्स मिडीवल के लिए मैंने देख लिए थे. फिर बात आती है मॉडर्न इंडिया की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस के लिए, दोनों के लिए ही. उसके लिए एक बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, जो बिपिन चंद्रा की ही है. एंड उसके बाद स्पेक्ट्रम जो किताब है उसको मैंने बहुत बार पढ़ा है. इफ यू रीड दैट बुक, इट इज कम्प्लीटली रेड हाईलाइटेड एंड एवरीथिंग. सो उसके आराम से
3 से 4 रिविजन ऑफ दैट बुक। अच्छा तो प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे मैं बस उसी को रिवाइज जी करके जाती थी, विच शुड बी गुड। उसके पीछे के चैप्टर्स पर भी ध्यान दें, क्योंकि 2018 का प्रीलिम्स आपने देखा हो तो क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द लास्ट चैप्टर्स ऑफ स्पेक्ट्रम विच कैंडिडेट्स यूजुअली लीव। अच्छा, तो वो भी करने हैं अच्छे वो से, स्किप नहीं करना, वो स्किप नहीं करने हैं। ओके। फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट ऑल्सो आई डिड फ्रॉम स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन NCERT। ओके, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आई डिड नॉट रियली रीड एनीथिंग, जस्ट देयर आर दोज बुकलेट्स अवेलेबल, सम कोचिंग मटेरियल 40-50 पेजेस का जो बुकलेट आता है जी जी, वही देख के रिवाइज कर लिया था, क्योंकि जनरली यू आर एबल टू हैंडल दैट जोन। ओके, बाकी सारे GS में वो कवर ही हो जाता है। ग्रेट। तो ये तो थी आपकी हिस्ट्री के रिसोर्सेज जो आप बता रहे हो व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग। सो प्रीलिम्स एंड मेंस का क्या आपकी तैयारी इंटीग्रेटेड वे से ही हो रही थी और डिड यू प्रिपेयर सेपरेट? जी मुझे लगता है प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड वे में ही पढ़ना चाहिए जी, उससे समय बहुत बच जाता है और यू कैन एक्चुअली इंश्योर कि फर्स्ट सिंसियर अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, क्योंकि जो एटलीस्ट GS 1-2 के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जी, वो स्टैटिक क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं, तो Okay. मेंस का पूरा स्टैटिक हाँ, प्री के साथ ही तैयार किया जा सकता है। जी, सो व्हेन यू आर डूइंग हिस्ट्री उससे प्रीलिम्स भी आएंगे और सिमिलर क्वेश्चंस मेंस में भी आ जाएंगे। सो ट्राई टू हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, दैट्स Great. व्हाट आई वुड सजेस्ट। सो ये तो रही हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी अभी क्योंकि आपने एनसीईआरटी मेंशन किया, आई नो द फर्स्ट वन दैट यू सेड ओल्ड एनसीईआरटी। हाँ. तो आपने ज्यादा किस पे फोकस किया? डू यू थिंक इट्स ओल्ड एनसीईआरटीज या न्यू एनसीईआरटीज? क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। हाँ। सो ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। मुझे तो उस टाइम पर जो रिकमेंड कर देते थे वो पढ़ लेती थी। okay. So I think for history it was mostly old NCERTs, for geography new NCERTs, for economy also new NCERT. Okay. So it kind of depends which subject you're reading. Okay. Yeah. तो ज्योग्राफी, सिंस आपने कहा ज्योग्राफी न्यू एनसीईआरटी, हाँ. तो ज्योग्राफी के बारे में आप बताइए, आपने कैसे तैयारी की? ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th-12th की चारों NCERTs पढ़ी है एंड दैट्स इट। फिर लेट्स गो टू पॉलिटी। आपने तो लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली बोल दिया है, बट Yes. लक्ष्मीकांत में भी इफ यू कैन टेल मी इफ देयर वाज अ पर्टिकुलर वे जो आप फॉलो करते थे लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए, बिकॉज जब कोई नया शुरू करता है यूपीएससी की तैयारी, लक्ष्मीकांत इज लाइक मैसिव फॉर देम, उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लक्ष्मीकांत। तो उसके पे भी इफ यू कैन शेयर सम टिप्स कि कैसे शुरू कर सकते हैं। जी लक्ष्मीकांत इज लाइक बाइबल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, देयर इज नो एक्सक्यूज टू रीड इट। बट ये आपने सही कहा, उसको सही तरीके से पढ़े तो अच्छा है। जी, तो rather than reading from first chapter to last chapter, do it section wise कि एक दिन सेंटर उठा लिया तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स कर लिए, पार्लियामेंट कर लिया, वो सब कर लिया। एक दिन स्टेट उठाया, वो कर लिए। तो सेक्शन वाइज मैं कर रही थी। इसमें थोड़ा सा ग्रुप स्टडी और पार्टनर स्टडीज हेल्प। तो मैं जिस टाइम पे तैयारी कर रही थी, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो मैं अपनी पूरी ज्योग्राफी और पॉलिटी हम साथ में पढ़ते थे। तो विल रीड फॉर 2 hours एंड आस्क ईच अदर द आर्टिकल्स एंड क्वेश्चंस कि कितना पढ़ा। तो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स। तो आप ओनली वे आउट इज टू you know put in too much time in making notes rather than reading that book again. Okay. वो एक तरीका होना चाहिए। और जब पहली बार ही उस किताब को पढ़ रहे हैं तो जल्दीबाजी ना करें। हो सकता है 1 महीना भी लग जाए उस बुक को ही खत्म करने में, अगर रोज 4-5 घंटा दे भी रहे तब भी इट्स ओके। फर्स्ट टाइम में जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो कभी नहीं बनती। ग्रेट। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अलावा लाइक यू डिडंट नीड एनीथिंग एल्स? फॉर मेंस ऑफ कोर्स आई डिड करंट अफेयर्स, अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स। ओनली लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ। ऑलराइट। सो प्रीलिम्स में लाइक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी उस पे आपने मैंने कहाँ से तैयारी की? प्रीलिम्स इकोनॉमी के लिए एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी किताब है के शंकर गणेश की। ओके। तो वो बुक बहुत अच्छी है फॉर बेसिक इकोनॉमी कॉन्सेप्ट फ्रॉम जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। तो उससे स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं प्रीलिम्स में, हर साल 3-4 तो आती हैं, वो एकदम सॉर्टेड है। उसके अलावा प्रीलिम्स में जो ट्रेंड है वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। तो देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन जीएसटी, स्कीम्स, बजट, सर्वे। तो इसलिए इकोनॉमी इज वन सब्जेक्ट जिसमें मैंने बहुत सोर्सेज पढ़े हैं कि स्टैटिक के लिए के शंकर गणेश, उसके बाद बजट, इकोनॉमिक सर्वे, दो करंट अफेयर्स बुकलेट्स जो मार्केट में होती हैं वो, स्कीम्स के लिए एक, रिपोर्ट्स इंडाइसिस के लिए। सो आई थिंक ये सारा कुछ करेंगे तब जाके इकोनॉमी कंप्लीट होगी। ओके, ग्रेट। तो इकोनॉमी के बाद आते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए आपने क्या किया था? साइंस एंड टेक के लिए बहुत ज़्यादा
एफर्ट्स डालना इज नॉट अ सेंसिबल थिंग, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें जी तो बहुत प्रोडक्टिव नहीं होता। तो मैं बस करंट अफेयर्स बुकलेट्स करके जाती थी कि जो पूरे साल न्यूज़ में था, और जो कोर एरियाज हैं, स्पेस हो गया और IT एंड 4G ये सब हो गया, उसके लिए चूंकि मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया ही था कोचिंग, तो उस कोचिंग के जो साइंस टेक के क्लास नोट्स थे वो देख लेती थी, प्लस करंट अफेयर्स बुकलेट्स, नो बुक, नो रेफरेंस बुक फॉर साइंस टेक। ग्रेट तो वहाँ से सीधे चलते हैं अब हमारी इन्वायरमेंट पे। आई थिंक इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स बचता है हमारा, सो इन्वायरमेंट के लिए क्या किया था आपने? इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की जो किताब है वही पढ़ी है, दैट ग्रीन बुक। सो एक ही किताब पढ़ी है, बट वही उसके भी बहुत रिवीजन लगाए हैं, बिकॉज दैट इज अनदर बुक विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत फैक्ट्स हैं उसमें जी। एंड चूंकि फॉरेस्ट का और UPSC का इंटरव्यू का प्रीलिम्स कॉमन होता है, तो आजकल बहुत ज्यादा उसके ऊपर उसका लेवल भी ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, तो इट मेक्स सेंस टू पुट इन एफर्ट्स। उसके अलावा करंट अफेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट अफेयर्स जब हम बोल ही रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए भी स्पेशली आपने कैसी तैयारी की थी? लाइक व्हिच वाज द न्यूज़पेपर यू वर रेफरिंग टू, एनी स्पेसिफिक कोई दूसरा रिसोर्स जो आप यूज कर रहे थे करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली? करंट अफेयर्स के लिए मैंने रेगुलरली द हिंदू पढ़ा है, तो एक अखबार तो रोज पढ़ना ही है जी। उसके अलावा फॉर रिविजन एंड टाइम रिविजन फॉर प्रीलिम्स आई स्टिक टू एनी वन कोचिंग्स कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स, जो एंड में बुकलेट्स निकलती है PT 365 और वो सब। तो सारे सब्जेक्ट्स की वो सारी बुकलेट्स को मैं अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेती थी, क्योंकि प्रीलिम्स में काफी ज्यादा वेटेज है उसका जी। तो अभी जैसे कि आपने बताया ही, ऑब्वियसली देयर आर स्टैटिक एरियाज आल्सो, करंट एरियाज भी है, तो प्रीलिम्स में आपने ऐसे क्या नोटिस किया? यू नो, इज देयर मोर questions from the static area, is there more questions from these current issues and all? क्या लगता है आपको, ज्यादा स्टैटिक से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के लिए? देखिए ट्रेंड बदलता रहता है। लाइक 2016 देखो तो शायद बहुत ज्यादा करंट था, 17-18 में बहुत कॉन्सेप्चुअल हो गया है पेपर, और स्टैटिक क्वेश्चंस भी करंट से इंस्पायर्ड हैं। तो आई थिंक 20 से 30 क्वेश्चंस तो करंट आते ही हैं, उसके बाद स्टैटिक भी पर भी उसका इन्फ्लुएंस है, तो देयर इज अ गुड मिक्स, तो यू कैन नॉट इग्नोर आइदर ऑफ देम। सो आई थिंक स्टैटिक यू शुड बी वेरी थॉरो विथ, ताकि करंट कहीं से भी आ जाए, आपका एक सेफ स्कोर हो जाए और प्रीलिम्स निकल जाए। तो स्टैटिक तो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो स्टैटिक से साथ थरा रहना है और करंट के साथ नोन रहना है। हाँ, राइट। परफेक्ट। सो प्रीलिम्स जब ये प्रीलिम्स की स्टेज जब हो जाती है, उसके बाद बहुत लोगों में ऐसे डाउट्स होने लगते हैं कि विल द प्रीलिम्स गेट क्लियर। बहुत लोग वेट करते हैं कि प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आए, उसके बाद मेंस के लिए तैयारी करते हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट थे, लाइक से पहले अटेम्प्ट में भी और ये सेकेंड अटेम्प्ट में भी, आफ्टर गिविंग योर प्रीलिम्स, कि भाई मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा? राइट, सो आई वुड लाइक टू से दैट अगर बॉर्डर लाइन मार्क्स भी हैं तब भी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि इस बार नहीं तो अगले साल के मेंस के लिए तो काम आ ही जाना है। डू नॉट वेस्ट दैट टाइम, बिकॉज हॉलीडे में मत निकल जाना। हाँ, नहीं 10-15 दिन का ब्रेक तो यू डिजर्व इट, वो ले ही लो, वरना सैचुरेशन आ जाएगा, बट नॉट मोर देन दैट। एंड प्रीलिम्स से मेंस के बीच का जो टाइम है, इट इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड इन द एंटायर UPSC's प्रिपरेशन। तो उस समय को जुडिशियसली यूटिलाइज करें, तो मेंस विल बी सॉर्टेड। परफेक्ट। तो एक चीज जस्ट लास्ट में प्रीलिम्स में टच करना चाहती हूँ। आपने कहा था यू आर फॉलोइंग द हिंदू। एक तो भाई लोगों में कंफ्यूजन यही रहती है कि मैं हिंदू उठाऊं या इंडियन एक्सप्रेस उठाऊं, उसी को आई थिंक उसी कंफ्यूजन में आधा टाइम निकाल देते हैं। उसके बाद फाइनली अगर सपोज हिंदू सिलेक्ट भी किया, तो बहुत लोगों बहुत सारे एस्पिरेंट्स की ये क्वेश्चन रहती है कि द हिंदू इज सो डिफिकल्ट टू रीड। तो मतलब इतने सारे आप देखो, अगर आप जाके देखने लगे लोग पढ़ा रहे हैं, तो हाउ टू रीड द हिंदू, तो उस पे आप क्या कहोगे? उस पे इफ यू कैन शेयर सम टिप्स ऑन हाउ कैन पीपल एक्चुअली गो थ्रू द हिंदू, अगर एकदम ही स्टार्ट से कोई प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल ये परेशानी मुझे भी आई थी, क्योंकि मुझे तो लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम थी जी। तो शुरू में हिंदू पढ़ना बहुत कठिन होता है, लैंग्वेज भी काफी डिफिकल्ट है, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, फॉर्मेट ही अलग है। हम पूरे लाइफ टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर पढ़ के बड़े होते हैं, एंड देन सडनली दिस। तो शुरू में मुझे भी 3 घंटे लगते थे, पर फिर सिलेक्टिवली पढ़ना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम UPSC के सिलेबस के साथ थॉरो रहें जी।
तो जब सिलेबस याद रहता है तो हमें पता होता है कि हमें पेपर का क्या सेक्शन पढ़ना है क्या नहीं। जैसे पॉलिटिकल न्यूज़, गॉसिप्स पूरी अवॉइड करना है, स्पोर्ट्स पूरा अवॉइड करना है, रीजनल न्यूज़ अवॉइड करना है। हमें सिर्फ पढ़ना है फ्रंट एंड बैक पेज, नेशनल न्यूज़ के पेज, एडिटोरियल वाला पेज, थोड़ा सा वर्ल्ड एंड थोड़ा सा बिजनेस, दैट्स इट। तो वो पहली स्टेज क्रॉस हो गई कि तुम्हें पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। दूसरी चीज, कुछ लोग पूरे पेपर के नोट बनाने में टाइम लगा देते हैं और ऐसे में उनके दिन के 4 घंटे सिर्फ अखबार पर चले जाते हैं। ऑनेस्टली यूपीएससी में यू कांट अफोर्ड टू गिव सो मच टाइम फॉर वन थिंग। इसलिए मैंने कभी पूरे अखबार के नोट्स नहीं बनाए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए तो नहीं। मेंस ओरिएंटेड अगर कोई एडिटोरियल या आर्टिकल अच्छा दिख रहा है तब तुरंत से छोटी सी उसकी समरी लिख ली, या उस एडिटोरियल के आधार पर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया एज एन आंसर फॉर्म। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो रोज क्वेश्चंस देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ द डे, कि से आज मेंटल हेल्थ बिल आया है, उस पे एक एडिटोरियल है, तो उस पे GS2 का एक क्वेश्चन बना दिया कि दिस बिल इज प्रपोज, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड हाउ फार यू थिंक it can help uplift the problems of mentally ill people. It's just an example. तो उस दिन का अखबार पढ़ा और उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए कि से इसी पर आंसर क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूंगी। और प्रीलिम्स के लिए अगेन देयर आर प्लेटफॉर्म्स जो उस अखबार के बेसिस पे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन MCQ के पूछते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ द डे। तो वो भी बहुत हेल्प करते हैं इन रिवाइजिंग इट एंड यू नो टोनिंग यू फॉर द एग्जाम एंड नॉट लेटिंग यू डिस्ट्रैक्ट। परफेक्ट। तो आई थिंक गरिमा जी ने यहाँ बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि हिंदू से पढ़ना कैसे है, उससे नोट्स कैसे बनाने हैं, आई थिंक शी हैज एक्चुअली स्ट्रीमलाइंड इट फॉर ऑल ऑफ यू कि कैसे आप भी कर सकते हो। एंड इफ यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ issues coming up with preparing for these subjects, you can definitely go and check out the Unacademy Plus, which is on unacademy.com/plus, जिसका ad अभी play होने वाला है, and then you can check out the Unacademy Plus subscription, which will basically help you with all your preparation needs. So go check that out. The link is in the description. मेरा नाम अक्षित जैन है और मैंने इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में दूसरी रैंक हासिल की है। मैं समझता हूँ इस एग्जाम में सफलता पाने के लिए एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी चाहिए होती है और मैं ये स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई टीच लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस फॉर यूपीएससी CSE। आइए मेरे साथ पढ़िए और वो बारीकियाँ जानिए जिससे आप भी इस एग्जाम को एस कर सकते हैं। गरिमा जी, अब क्योंकि आपने प्रीलिम्स के बारे में इतने अच्छे से समझा दिया है हमें, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मेन स्टेज, राइट? मेंस में ऑब्वियसली बहुत सारे सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स है जो फिर इट्स सिमिलर विद द प्रीलिम्स आल्सो। तो मेंस के लिए आपने तैयारी कैसे की थी? व्हाट आपने पहले तो हमें बताया है प्रीलिम्स में ईच सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे किया था, यहाँ पे भी अगर आप बता सको मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आपने की थी हर सब्जेक्ट के लिए। GS पेपर वाइज हम करते हैं सो दैट इट बिकम इजियर। तो GS1 की तैयारी आपने कैसे की? देखिए GS1 में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, तो प्रीलिम्स के साथ ही मैंने एक बार उसको कवर करने की कोशिश कर ली थी, वो चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या और क्या होता है, सोसाइटी है। सो ये सब एक बार प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ लिया और फिर प्री के होने के बाद क्विक रिवीजन कर लिया। तो GS1 को बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया मैंने। GS1 में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि समहाउ कंटेंट ज़्यादा होता है हमेशा GS1 में लिखने के लिए और समय कम होता है। तो उसमें जहाँ तक ज्योग्राफी का सवाल है, आई थिंक डायग्राम्स really help in scoring well and आंसर राइटिंग के समय और समय बचाने में। कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे विमेन इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, जिसका कहीं पे कोई प्रॉपर्ली कोई सोर्स नहीं है ऐसा कि भाई कोई बुक उठा लिया आपने, उस बुक में ही सब कुछ है उसी से पढ़ लो, NCERT की तरह नहीं है। तो ऐसे टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करते थे आप? ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेंस में, बट जब आप पूरा साल GS पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो इन इश्यूज पे अपने आप ओपिनियंस आ जाते हैं, टॉपिक्स पॉइंट्स आ जाते हैं। तो कोई बहुत स्पेशल सोर्स या बुक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और
जो सिलेबस में सारे टॉपिक्स लिखे हैं Okay. उन सारे टॉपिक्स को किसी एक सोर्स से पढ़ लो, वो चाहे कोचिंग हो, कोई एक किताब हो, एनीथिंग, बस एक रीडिंग देनी है, Okay. अपनी समझ बनानी है और कुछ फॉर्डर पॉइंट दिमाग में फिक्स कर लेने हैं। Okay. उसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज पॉइंट इन पुटिंग टू मच टाइम इन इट। Okay. फिर जो करंट अफेयर्स आएंगे उससे अगेन आपको पॉइंट्स और एग्जाम्पल मिल जाएंगे, Perfect. तो अच्छे आंसर्स तैयार हो जाते हैं। Great. Right. तो ये थी आपकी GS1 की तैयारी। जी, GS2 पे चलते हैं। GS2 में पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है एंड सोशल जस्टिस। Okay. ओके, सो पॉलिटी के लिए स्टैटिक पार्ट लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत अगेन। इस जी। साल का तो पेपर बहुत स्टैटिक था, करंट भी था, बट देयर वर क्वेश्चंस लाइक यू नो फाइनेंस कमीशन एंड मनी बिल एंड थिंग्स, जिसके लिए बजट, जिसके लिए जरूरी है कि आप स्टैटिक का एक बार ब्रशअप कर लेना, उस किताब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ब्रशअप करने हैं। Okay. अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, तो एनी वन ऑफ दोज बुकलेट्स अगेन, जो मेंस 365 और वो सब आती हैं, तो जी। जिससे उस पे, और जब पूरा साल अखबार पढ़ रहे हैं तो एक खुद का भी ओपिनियन बन जाता है। फॉर एग्जांपल इस साल LG वाला इशू था, लिटिल कंट्रोवर्शियल आल्सो, वेरी कॉन्सेप्चुअल, इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर हमारे खुद के ओपिनियन हों। Okay. जब हो रहे हैं वो करंट, तभी हम वो बना ले ओपिनियन, तो अच्छा है। एग्जाम के 2 दिन पहले नोबडी इज एबल टू डू इट। Okay. फिर सोशल जस्टिस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, पर उनको भी एक एक बार पढ़ लेना अच्छा ही होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही है। तो कोई एक अगेन मटेरियल उठाकर एक तो जगह जैसे से, कि ये टॉपिक्स पे, जैसे पॉवर्टी, सोशल जस्टिस, इन पे जब आप आंसर्स लिखते थे, आपके आंसर्स को बेटर करने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा करते थे? हाँ, मैंने बिल्कुल किया था। ऐसे आंसर्स को इम्प्रेसिव बनाने का तरीका है सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। Okay. तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट अभी भी अपने फोन में हैंडी है, Okay. जिसमें मेरे पास कुछ 80 से 100 फैक्ट्स हैं। Okay. तो हेल्थ के ऊपर कुछ 10 डेटा, Okay. एजुकेशन के ऊपर कुछ डेटा, जिसमें आई विल हैव इंफॉर्मेशन लाइक कि इंडिया के एनरोलमेंट रेशियो कितना है, इंडिया में कितने लोग टीबी से परेशान हैं, कितना परसेंटेज हेल्थ पेनिट्रेशन है। इस टाइप का डेटा जब हमारे पास हैंडी होता है, या वाटर हो गया जो GS3 में काम आ जाएगा, जी। तो वी कैन ऑलवेज स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन विद दिस फैक्ट कि प्रॉब्लम इज सो सीवियर कि ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड देन यू जी। स्टार्ट द आंसर। और पॉलिटी के केस में स्टार्ट विद एन आर्टिकल। Okay. अगर फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन है तो जस्ट राइट कि आर्टिकल 280 सेज दिस एंड देन यू स्टार्ट एन आंसर। Great. और प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपीज मैंने देखी है, स्पेशली एसए और GS, जी। इवन ऑप्शनल। Okay. तो उससे बहुत हद तक आइडिया लग जाता है, पॉइंट्स में लिखना है, कैसे लिखना है। जी। और गौरव अग्रवाल सर की मैंने कॉपी GS2 की देखी थी, जी। तो उससे मुझे इनपुट्स मिले थे कि कैसे लिखना है। जी, परफेक्ट। तो Yeah. गरिमा जी, अब जल्द से चलते हैं वापस। GS3 और GS4 बच जाता है हमारा, तो उस पे अगर आप बताओ। करंट अफेयर्स, इसके लिए मैंने स्टैटिक नहीं पढ़ा है। इकोनॉमी के लिए आई जस्ट रिवाइज्ड इकोनॉमिक सर्वे ओके। एंड करंट अफेयर्स। जी। एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को जरूर मैंने एक बार देख लिया था, एक कोई सोर्स लेकर। आई थिंक एग्रीकल्चर में मैंने मृणाल की वीडियोस देख ली थी, ओके। दे केम हैंडी। ओके। फिर इन्वायरमेंट के लिए नो स्टैटिक, हम्म। जस्ट द करंट, बिकॉज सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक योजना आई थी, उसके मैंने नोट्स बना रखे थे। जी। और सेकेंड ARC में भी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसके भी नोट्स मिल जाते हैं, वो कर लिया। ओके। साइंस टेक अगेन सिर्फ करंट अफेयर्स, क्योंकि जो पढ़ के जाते हैं वो आता नहीं है वैसे भी। ओके। फिर आता है इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी, TMH की है शायद, अशोक सर, इज एन IPS ऑफिसर, ओके। उनकी किताब है, वो एक बार पढ़ी थी। और अगेन करंट अफेयर्स। ओके। So GS3 is pretty much current affairs booklets for each, and I think one need not devote a lot of time to static portion For of GS3 except agriculture. परफेक्ट। Yeah. उसके बाद GS4 आता है। GS4 में nobody really knows what works, but फिर भी if I have to attempt, then I would say कि मेरे केस में case studies worked. ओके। मतलब क्योंकि मॉक टेस्ट भी देती थी तो केस स्टडीज में अच्छा स्कोर करती थी। जी। तो GS4 के सोर्स बोलूँ तो सिर्फ एक सोर्स पढ़ा था, आई थिंक अरिहंत की कोई बुक है, इट्स अ पिंक एंड वाइट कलर बुक, ओके। एंड उसके कुछ चैप्टर्स मैंने स्टैटिक पोर्शन के लिए पढ़ लिए थे। जी। केस स्टडीज के लिए मैंने पिछले 3 से 4 सालों के UPSC के ही GS4 की सारी केस स्टडीज लिख के देखी थी, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं पैटर्न रिपीट्स इफ नॉट द क्वेश्चन, ओके। और हम वो साइकी समझ पाते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके। एंड केस स्टडीज को भी मैं
केसेस वाइज या पॉइंट वाइज लिखती थी। जी। तो कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके 4 सिनारियो बनाऊंगी कि पॉसिबिलिटी नंबर 1 अगर ऐसा है तो पॉसिबिलिटी नंबर 2, 3, 4 कि इस केस में मैं ऐसा करूंगी, उस केस में मैं ऐसा करूंगी। Okay. और अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि आप इस सिचुएशन में चीफ सेक्रेटरी हैं एंड सो ऑन, Okay. तो आप क्या करेंगी। जी। तो उस कोर्स ऑफ एक्शन को मैं पॉइंट वाइज लिखती थी कि फर्स्ट आई डू दिस देन दिस, एंड करीब 10 से 12 पॉइंट्स मेरे बन जाते थे, जी। इंक्लूडिंग फ्यूचर में क्या करना चाहिए कि करंटली तो मैंने ऐसे सिचुएशन हैंडल कर ली, Okay. बट फ्यूचर में ऐसी एसओपी बनाई जानी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम या आपत्ति फिर से ना आए। तो एक पार्ट रह जाता है एसेज। हाँ। सो एसेज का एक जो हमारे लर्नर्स पूछते हैं कि हाउ, जब पेपर में आते भी है क्वेश्चंस, तो कैसे आप डिसाइड करते हो कि कौन कौन से एसेज मुझे लिखने हैं। उसके बाद आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में बेसिकली कितना टाइम देते थे और कितना टाइम एक्चुअली उस आंसर को लिखने में लगाते थे आप। तो पहली बार जिस भी टॉपिक में आप सबसे कंफर्टेबल फील करें, जिसमें आपको लगता है मैं सबसे ज्यादा लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, गो फॉर दैट। डू नॉट अप्लाई दैट अननेसेसरी ब्रेन की ये तो सब लिख रहे हैं मैं नहीं लिखूंगा। डोंट ट्राई टू बी टू डिफरेंट। जिसमें कंफर्टेबल है वो। ओके। दूसरा, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे मैं बहुत ज्यादा टाइम देती हूँ, 15 से 20 मिनट। इनफैक्ट फर्स्ट ऐसे के लिए तो इस बार मैंने लगभग 25 मिनट दे दिए थे। जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, पूरा डायग्राम बनाती थी लास्ट पेज पे रफ में। ज्यादा डायमेंशंस खोलने की कोशिश करती थी और हर डायमेंशन में एग्जांपल्स, एंड देन जस्ट द राइटिंग पार्ट वाज लेफ्ट। तो अ लॉट ऑफ टाइम इनटू ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड देन अराउंड 1 hour to write the essay, each essay. So GS papers सारे खत्म हो जाते हैं, मेंस खत्म हो जाती है, तो उसके एंड में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? कितने श्योर थे आप कि भाई मेंस भी मेरा बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू का कॉल तो आना ही है? लास्ट टाइम बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा की थी पिछले साल जी, पर चूंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन छूट गए थे जी, इसलिए 50-50% चांसेस लग रहे थे कि जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आएगा तो शायद नहीं भी हो, और लगता था कि नहीं, क्वालिटी ऑफ आंसर्स मेरी अच्छी ठीक होती है तो आ भी जाएगा जी। 50%. This year भी you're never sure basically, so I kind of again I was very upset after my GS2, almost into tears and everything. Okay. इस बार के attempt हाँ, में? इस बार के अटेम्प्ट में. Okay. And optional also, मेरा Okay. optional बिगड़ गया था GS1, अब इस बार? पेपर 1. Okay. तो कंफ्यूजन था, बट कहीं ना कहीं ये पता था कि इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा, Okay. पर अंडर 100 रैंक आ पाएगी कि नहीं, Surety इसके नहीं लिए थी। श्योरिटी नहीं थी, बट वो शायद ही कभी होती है. दिस इज द नेचर ऑफ एग्जाम, It's a यू नेवर surprise. श्योर, इट्स अ सरप्राइज. ग्रेट. तो ऑप्शनल के बारे में थोड़ा अगर आप बता दो हमारे लर्नर्स को कि रिसोर्सेज क्या यूज किए थे और आपने कैसे तैयारी की थी, और अगर कोई ऐसे पॉइंट्स जो आप हमारे लर्नर्स को बताना चाहो जो अभी भी सोच रहे हैं whether this optional is correct for them. ऑप्शनल मेरा था फिलोसफी, Okay. और मेरे लिए इट वाज अ चॉइस बिकॉज आई कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. माय ब्रांच ईसी इज नॉट एन अवेलेबल ऑप्शनल. Okay. सिलेबस रिलेटिवली कॉम्पैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे काफी इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ये ऑप्शनल लिया. Okay. एट द सेम टाइम एक स्लाइट ड्रॉबैक ये भी है कि इट इज नॉट बीन स्कोरिंग वेरी वेल. इनफैक्ट मेरे केस में भी ऑप्शनल वाजंट दैट कंफर्टेबल जोन. इट वाज कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, बट स्कोर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता है नॉर्मली, बट फिर भी इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. Okay. प्रिपेयर कैसे किया, तो मैंने एक बार तो कोचिंग ज्वाइन की थी बिकॉज इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट. Okay. उसके बाद उस मटेरियल और नोट्स के ऊपर मैंने एक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी फॉर वेस्टर्न इंडियन फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ रिलीजन एंड सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी. बुक्स के नाम आपको बाय एनी चांस याद है? हाँ. सो आई रेफर टू थिली फॉर वेस्टर्न फिलोसफी, Okay. CD शर्मा फॉर इंडियन फिलोसफी, फॉर सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी OP गोबा विच इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर ऐसे ऑल्सो, Okay. और फिलोसफी ऑफ रिलीजन के लिए वाई मसी. तो Okay. ये 4 किताबें पढ़ी हैं. उसके अलावा जो नोट्स थे मेरे, जी, इन सबको कंपाइल करके मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे. जी. और फिलॉसफी से मुझे इंटरव्यू में भी बहुत सवाल पूछे गए हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड कि पढ़ते समय ही मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स पर काफी ज्यादा काम किया. Okay. इसलिए मुझसे हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो इवन विदाउट रिवीजन आई कुड आंसर इट वेल. तो क्योंकि अभी आपने इंटरव्यू मेंशन कर दिया, लेट्स क्विकली गो टू द इंटरव्यू राउंड आल्सो. कैसा रहा आपका इंटरव्यू राउंड? अगर आपको याद रहे कि कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए थे आपके बोर्ड से, वाज इट मोर रेलेवेंट टू द यू नो द टॉपिक्स और योर ऑप्शनल, जैसे आपने कहा क्वेश्चंस आए थे, या यू नो डैफ, आपके डैफ से भी क्या बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाउ वाज इट?
Interview experience was great, and I both year, last year also, this year also, I could score 190 plus. And questions were from mainly 3 areas: DAF, almost every aspect of DAF. Okay. Second, current affairs. Okay. And very opinion oriented rather than facts oriented. Okay. And third, surprise questions, which Okay. you're never prepared for. Situational questions कि से आप इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, IS हैं, ऐसा स्कैम हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, and they try to kind of pressurize you. Okay. And really try to हार्ड कि हम कुछ गलत दिशा में चले जाएं. जी. उस टाइम पे यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट, ट्रू टू योरसेल्फ एंड They're checking your ऑनेस्ट आंसर. personality. दे चेकिंग योर पर्सनालिटी. Okay. और वो सच में पर्सनालिटी टेस्ट ही है. जी. तो ये 3 एरियाज से मुझे क्वेश्चंस थे. Okay. और दे ऑल्सो चेक अ लॉट ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड स्पॉन्टिनिटी. तो आप कितने मॉक इंटरव्यूज दे ले, प्रिपेयर करके चले जाएं, दे आर इजीली एबल टू कैच कि कौन रटे हुए आंसर दे रहा है, कौन जेन्युइनली दे रहा है, और कौन उसी समय सोचकर आंसर दे रहे हैं. सो अब क्योंकि इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया, एक लास्ट राउंड रहता है विच इज हमारा फन राउंड, विच इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड. अब और कुछ एग्जाम के बारे में आपको याद नहीं करना है. नाउ यू कैन लुक फॉरवर्ड टू लभासना. इसमें बेसिकली बहुत क्विक क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाली हूँ, जिसके लिए यू जस्ट हैव अ वर्ड और अ लाइन टू आंसर. ठीक है. और टाइमर ऑन रहता है, सो आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है. ठीक है. छोटे छोटे क्वेश्चन है. आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चंस? श्योर. ग्रेट. सो फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस बात के लिए हो? टू गो होम. 5 महीने के बाद अभी मिड टर्म ब्रेक मिला है. आई हैवंट मेट माय पेरेंट्स सिंस रिजल्ट. So one superpower if you were given, वो कौन सी आप लेते? To be invisible. If you had a chance to meet someone from the past, like maybe a historical person or something, तो who would that be? जिसके साथ you would like to meet and have a discussion? Swami Vivekanand. So if you were given an option to spend your entire day with just 3 of your most favorite people, who would they be? Yeah, my mom, dad, sister and brother. If you got the option to go back in time and meet 15-year-old Garima, आप उनको क्या एडवाइस देते? Okay. I remember 15-year-old Garima was like, so passionate about 10th board and this, and now I look back and realize कि important नहीं है. Nobody really looks at your mark sheet. And also to have a very long-term vision. Though I still had one, Always but had still one. even more of that. Great. So Garima, आपके सारे answers के लिए we actually have something small here from Unacademy for you. This is आपके लिए. Thank you can so just keep it much. here only. That's Okay, it. thank No, you. you can keep it down. Yeah. Perfect. So those were all the questions. I think आपके answers तो हमेशा ही अच्छे थे, even in your interview rounds and even now. Thank you for sharing all that knowledge today. Before we end this episode, एक चीज जो हम अपने सारे topics के साथ करते हैं is we tag another friend. So अगर आपका कोई if there is another friend or a family member जिन्होंने इस बार इस एग्जाम में क्लियर किया है और रैंक अचीव किया है, even in civil service exam or any other exam, you can tag that person. We'll try to get in touch with them for our future episodes. So who would you like to tag? Oh, okay. My sister, Preeti Agrawal. Great. She's also into services 2012 batch, so Perfect. probably. So Preeti, जैसे कि we met Garima and आपके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता चला है, we would love to meet you also and hear your journey that has happened until now और आपकी preparation कैसी रही है. So looking forward to meet you. Our team will be in touch with you also. Great. Okay. So Garima, now we have come to the end of the show. But before we end, I would just want कि अगर आप, I would rather request कि अगर आप हमारे सारे aspirants को एक message दे दो, because the ones जो अभी 2019 के prelims की तैयारी कर रहे हैं या the ones who are preparing for 2020. मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यूपीएससी की परीक्षा डेफिनेटली वन ऑफ द टफेस्ट है, प्रेस्टिजियस है, बट जब when I look at things from other side of the table now, I would like to say it is just an exam. उस एग्जाम को अपने आप से बड़ा मत मानिए. Treat it objectively just like an exam. दूसरी चीज़, सिर्फ पढ़ाई इनफ नहीं होती, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है. उसके लिए ज़रूरी है कि आप परसिवरेंस रखें, मतलब अप्स डाउन्स, हर समय पर एक कंसिस्टेंट लेवल ऑफ पढ़ाई को मेंटेन रखिए, तभी शायद कम अटेम्प्ट्स में आपका सिलेक्शन हो पाएगा. और तीसरा, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस तैयारी में. तो हमेशा उस सपोर्ट सिस्टम के लिए आप समय निकालें और उसे बनाए रखिए, ताकि आपके यू मेंटेन दैट कूल.
So that will really help you, and best of luck, do well, and I'm sure you will do well. Thank you so much for joining us here today, Ganima. We've come to the end of our episode. मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके and finally meeting you. आपका कैसा रहा आज? It was great. I'm glad I could discuss the strategy in length and depth here, because a lot of aspirants have been calling me कि detailed strategy, sources and everything. जी. So I hope मैं 1 या 2 कैंडिडेट्स को भी अगर किसी भी तरह मदद कर पाई हूँ तो यहाँ आना सफल होगा. और it was a pleasure talking to you, and thank you. Thank you so much, Ganima, and I'm sure बहुत लोगों को ये help करने वाला है. Thank you so much, and I'm very grateful. Thank you.